سیدنا سالم بن عبید جو اصحاب صفا میں سے تھے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غشی طاری ہوئی. جب افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا نماز کا وقت ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کو کہو وہ اذان دے اور ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر فرشتے آنے کا معجزہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین. تو اس ویڈیو میں جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اسلامی تاریخ کا سب سے اہم واقعہ ہے. اس ویڈیو میں انجینئر محمد علی مرزا قرآن اور حدیث اور تاریخی دلیلوں کی روشنی میں اس واقعے کا تجزیہ کریں گے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت فرشتہ آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا طریقہ کیا تھا؟ یہ تمام سوالات اس ویڈیو میں تفصیل سے ڈسکس کیے گئے ہیں. تو اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں اور دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا اور جس طریقے سے انجینئر محمد علی مرزا نے بتایا ہے. اور اللہ تعالی ہم سب کا بھی معاملہ آسان کرے اور ہم سب کو اللہ تعالی ہدایت کا راستہ دکھائے. اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر ہم سب چلیں اور ہم سب کا بھی اس دنیا سے جانا آسان ہو. جو بھی جانے انجانے میں ہم سب سے غلطی ہو گئی ہے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. اور آپ لوگ سبھی نماز کے پابند بنیں اور قرآن شریف کی تلاوت کریں، صدقہ زکوٰۃ خیرات نکالیں، روزے رکھیں اور اپنے گناہوں کے لیے توبہ کرتے رہیں. اور اللہ ہم سب کے دینے کو اور توبہ کرنے کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ غشی طاری ہو گئی. جب افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا نماز کا وقت ہو گیا؟ لوگوں نے عرض کی. ازواج مطہرات نے کہا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کو کہو اذان دیں اور ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں. سیدہ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ ابو بکر بڑے رقیق القلب ہیں، وہ آپ کی جگہ جب مصلی پہ کھڑا ہوں گے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے، نماز نہیں پڑھا سکیں گے، روئیں گے کہ یہ دن بھی ہم نے دیکھنا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کی ڈیوٹی لگاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا. آپ نے فرمایا اپنی بیویوں سے تم ان عورتوں کی طرح ہو جو یوسف کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئی تھی. دیکھیں اتنا آپ کو غصہ آیا اپنی بیویوں پہ کہ میں جب کہہ رہا ہوں تو پھر تم لوگ یہ آگے سے آرگومنٹ کیوں کر رہی ہو؟ ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ کہا بلال کو کہو اذان دیں، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں. پھر سیدنا بلال کو اذان کہنے کا کہا گیا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے نماز پڑھائی. جب جماعت کھڑی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جماعت کھڑی ہو گئی ہے؟ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن وعلیہم السلام نے کہا جی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے کوئی ایسا آدمی دیکھو جس کا سہارا لے کر میں جا سکوں. پھر سیدنا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور شخص سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری روایتوں میں آتا ہے، ان کے سہارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لے گئے مسجد میں. سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھا کہ وہ صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانب آگے بیٹھ گئے. سیدنا ابو بکر یہ دیکھ کر مصلی سے پیچھے ہٹے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، نماز صرف ایک شخص کے پیچھے ہی آپ نے پڑھی ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. اس روئے عرض پہ اور کوئی شخص ایسا نہیں جس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز پڑھی ہو یا کسی نبی نے کسی امتی کے پیچھے پڑھی ہو سوائے عبد الرحمن بن عوف کے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو سیدنا عمر نے فرمایا میں کسی شخص کو نہ دیکھوں کہ وہ یہ کہے کہ رسول اللہ فوت ہو گئے، میں اپنی تلوار سے اسے قتل کر دوں گا. یہ بخاری میں الفاظ نہیں تھے، یہ سنن نسائی الکبریٰ میں ہے. اس پہ لوگ خاموش ہو گئے کیونکہ وہ ان پڑھ قوم تھی. اس سے پہلے ان میں کوئی نبی مبعوث ہی نہیں ہوا تھا، اس لیے ان کو یہ تجربہ نہیں تھا کہ نبی بھی فوت ہو سکتا ہے. لوگوں نے کہا اے سالم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر کو بلاؤ،
मैं उनकी तरफ निकला, मैंने मस्जिद में उनको पाया, उन्होंने फरमाया क्या रसूलुल्लाह वफात पा चुके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मैंने कहा कि सैयदना उमर इब्न खत्ताब कह रहे हैं कि मैं किसी को यह कहते हुए ना सुनूं कि रसूलुल्लाह फौत हो गए, वरना मैं उसे कत्ल कर दूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रदियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहि सलाम। उन्होंने मेरी कलाई पकड़ी और चल पड़े, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत मुबारक के पास गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झुके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे अनवर को छुआ और बोसा दिया, यहां तक कि उन्हें यकीन हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं। फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने वहां आयत तिलावत की, सूरह अज़्ज़ुमर आयत नंबर 30, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। ऐ नबी, आपको भी मरना है और आपके मुखालिफिन को भी मरना है। सहाबा इकराम ने पूछा, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, ए यार गार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम, क्या रसूलुल्लाह फौत हो गए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? उन्होंने कहा हां। तो लोगों ने जान लिया कि सही बात यही है। फिर सहाबा इकराम ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा भी अदा की जाएगी? क्योंकि बाद लोगों ने कहना जनाजा कोई नहीं होया। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा जी हां। फिर साहबा ने पूछा, हम आपकी नमाज जनाजा कैसे अदा करें? उन्होंने फरमाया, लोग अंदर हुजरे में दाखिल हों, तकबीरात पढ़ें और दुआ करें, फिर वो बाहर आ जाएं, फिर दूसरे लोग जाएं, यानी ग्रोह दर ग्रोह दाखिल हों, इमाम कोई नहीं होगा। ये मैं इंशाल्लाह बता भी देता हूं इमाम शाफी का कौल इस कॉन्टेक्स्ट में। सही बुखारी में 4 तकबीरात भी साबित है मैयत के ऊपर, और सही मुस्लिम में 5 तकबीरात भी, दोनों सुन्नत है। अहले तशय्युअ सिर्फ 5 तकबीरात वाली सुन्नत पे अमल करते हैं, अहले सुन्नत 4 वाली पे भी करते हैं। और शेख ज़ुबैर ज़ई रहमहुल्लाह ताला के जनाजे पर 5 तकबीरात कही गई, और हर तकबीर के साथ रफ़ुल यदैन भी करना है, और सलाम आखिर में एक तरफ ही फेरना है, दाईं तरफ। बुलंद आवाज से भी जनाजा साबित है, लेकिन उमूमी अमल आहिस्ता आवाज के साथ है, सिर्रन। तो इंशाल्लाह मौका मिला, वैसे तो मैंने बता दिया, नमाज जनाजा के ऊपर रिसर्च पेपर ahlesunnatpak.com पर रखा भी हुआ है। साहबा इकराम ने पूछा, है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन भी किया जाएगा? उन्होंने कहा हां। साहबा ने पूछा, कहां तदफीन होगी? उन्होंने कहा, जिस जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को अल्लाह ने कब्ज फरमाया है, यानी वो चारपाई मुबारक, वहां पर उस चारपाई के नीचे कब्र खोदो, क्योंकि बिलाशुबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को पाकीज़ा मकान में कब्ज किया गया। तो लोगों ने जान लिया कि सही बात यही है। इसके बाद सकीफा बनी साइदा वाला चक्कर हुआ, अबू बकर उमर वहां पे चले गए। मसला नंबर 55 भी मेरा देख लें, वसी रसूल कौन है और हदीस क़िरतास का तहकीकी जायजा, वो डिटेल तलब है। और ये जो राफदियों की तरफ से कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे में अबू बकर उमर शरीक नहीं हुआ, बिल्कुल झूठ है। कहते नहीं, मैयत छोड़ के चले गए थे, उनको कफन दफन और गुसल भी नहीं दिया, तो वो अबू बकर ने देना भी नहीं था, वो तो अहले बैत ने देना था। सैयदना अबू बकर ने खुद भी कहा कि अहले बैत दें। मौला अली अलैहिस्सलाम और सैयदना फजल इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम ने गुसल दिया था। तो ज़ाहिर ड्यूटीज बांटी हुई थी, वहां पर फितना सकीफा बनी साइदा में खड़ा होने लगा था। तो ये एक डिटेल तलब लेक्चर है 55B मसला नंबर, आप देख लें तो आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा। इसी हदीस सुन्न नसाई अल कुबरा की, इसका एक तरीक शमाइल तिरमिज़ी में है 397। ये भी शेख ज़ुबैर ज़ई रहमहुल्लाह ताला की तहकीम के साथ शमाइल तिरमिज़ी छप चुकी है। 417 अहदीस है, 417। उसमें 397 नंबर है कि लोगों ने पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी ये बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा किस तरह अदा की जाएगी? तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि लोग हुजरे में दाखिल होंगे, तकबीरात पढ़ेंगे, दुरूद पढ़ेंगे और दुआ करेंगे। यही होता है, तकबीर कही जाती है, उसके बाद दूसरी तकबीर के बाद दुरूद, पहली तकबीर के बाद सूरतुल फातिहा, फिर दूसरी के बाद दुरूद, और तीसरी में फिर जो है वो दुआ मांगी जाती है। सना साबित नहीं, पहली तकबीर के बाद सूरह फातिहा और सूरत मिलाना साबित है। फिर वो बाहर आ जाएंगे, इसी तरीके से बाकी लोग भी दाखिल होंगे। इसीलिए तो 3 दिन लग गए ना जी। मंडे को चाश्त के वक्त, सुबह के वक्त डेथ हुई, और बुध की रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफनाया गया। इसी कॉन्टेक्स्ट में इमाम शाफी का कौल है सही सनद के साथ, सुनन अल कुबरा अल बैहकी में 6698 नंबर है, जिल्द 4 और पेज 30 पे। इब्न अब्बास कहते हैं, सबसे पहले मर्दों ने जनाजा पढ़ा, जोक दर जोक काफिलों की शक्ल में अंदर गए और दूसरी तरफ से बाहर निकले। उसके बाद औरतों ने जनाजा पढ़ा, उसके बाद बच्चों ने जनाजा पढ़ा। और इसके साथ इमाम बैहकी ने इमाम शाफी का कौल सही सनद से नकल किया है इसी नंबरिंग के अंदर, कि वो कहते हैं कि सहाबा इकराम ये नहीं चाहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे की नमाज का कोई इमाम बने,
क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का इजहार चाहते थे कि आपकी मैयत की मौजूदगी में भी कोई शख्स मुसल्ला इमामत पे खड़ा ना हो। यह प्रोटोकॉल दिया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत मुबारक को भी, कि आपकी मैयत की मौजूदगी में भी किसी ने मुसल्ले पर नहीं खड़ा हुआ। इंडिविजुअल नमाज जनाजा अदा की गई, तकबीरात भी, दुरूद शरीफ भी, दुआएं भी पढ़ी गई इंडिविजुअल, पहले मर्दों ने, फिर औरतों ने, और फिर बच्चों ने। इसी कॉन्टेक्स्ट में जामिया तिरमिज़ी और सुन्न इब्न माजा में हदीस है, मिशकात में 5963 है और सुन्न निसाई अल कुबरा में 7122, कि जब सहाबा इकराम में इख्तिलाफ हुआ तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह ताला अपने नबी की रूह को वहीं पर कब्ज़ फरमाता है जहां पर अल्लाह पसंद करता है, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक आपकी उस चरपाई के नीचे खोदी जाए। बाज असहाब ने कहा कि आपको बैतुल मक़दिस ले जाते हैं जहां 4000 अंबिया की कब्रें हैं, बाज ने कहा बकी गरकत ले जाते हैं, लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी है कि अल्लाह ताला नबी की रूह वहीं पर कब्ज करता है जहां वो पसंद फरमाए। तो जब अल्लाह ताला के नजदीक ये पसंदीदा जगह है और वैसी पसंदीदा है, रियाजुल जन्नह है, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के टुकड़े में दफन है। मसला नंबर 5 मेरा हयातुन नबी के ऊपर रिकॉर्डेड मौजूद है, तो जिसे शौक हो तो वो देख सकता है, बाकी डिटेल्स उसी में मौजूद है। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक यहां पर खोदो, हुजरा आयशा के अंदर खोदी गई, आज उसी हुजरा मुबारक के ऊपर गुंबद खजरा है। बाकी डिटेल मसला नंबर 54C और D में देख सकते हैं। कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी से मुताल्लिक फिरका वाराना नजरियात का तहकीकी जायजा। बस अब हमारा लेक्चर इंशाल्लाह 15 मिनट का ही रह गया है। अगली सिर्फ 3 हदीसें मुख्तसर बाकी हैं। 14वीं हदीस सुनन नबी दाऊद में, सुनन इब्न माजा में और दलाइलुन नबुव्वह इमाम बैहकी की किताब में है, मिशकात में भी है। बड़ी रिक्कत अंगेज हदीसें हैं मेरे भाइयों। 5948 मिशकात में अम्मा आयशा कहती हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देने का इरादा किया गया तो यह मालूम ही ना हो सका कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े उतारे जाएं या ना उतारे जाएं। अब सहाबा के लिए बहुत बड़ा डिसीजन था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े उतारे जाएं या उन्हीं कपड़ों में गुस्ल दिया जाए। सहाबा टेंशन में आ गए और अम्मा आयशा कहती हैं चुनाचे अल्लाह ताला ने उसी वक्त असहाब के ऊपर नींद तारी कर दी और इस कदर नींद तारी की कि उनकी ठोड़ियां सीनों के साथ लगी, यानी वो चाहते हुए भी अपनी ऊंग को रोक ना सके। और इसी ऊंग की हालत में हुजरा आयशा के कॉर्नर से एक नामालूम आवाज किसी फरिश्ते की होगी सुनाई दी कि अल्लाह के नबी को उनके कपड़ों समेत गुस्ल दिया जाए, कपड़े कोई ना उतारे। अल्लाह अकबर। और फिर सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने, अहले बैत ने, सैयदना अली और फजल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़ों समेत गुस्ल दिया। और अम्मा आयशा के अल्फाज हैं कि अगर ये आवाज हमें पहले मालूम होती तो हम नबी की बीवियां खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देती, लेकिन हमें ये बात पता नहीं थी। तो नबी की बीवियां भी अहले बैत हैं, लेकिन गुस्ल की सादत उनके हिस्से में नहीं आई, बल्कि मौला अली और फजल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अलैहिस्सलाम के हिस्से में आई। बल्कि सुनन इब्न माजा में एक हदीस है 1467 अल मुस्तदरक लिल हाकिम में भी मौजूद है। इमाम हाकिम ने भी सही कहा, इमाम ज़ाहबी ने भी मुवाफ़क़त की, शेख अलबानी ने भी सही कहा कि मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मैंने गुस्ल दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पे मैंने हाथ फेरा, जिस तरह वो पेट पे फेरा जाता है ना, तो कहते हैं कि अल्लाह की कसम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में भी पाक थे और वफात के बाद भी पाक थे, आपके जिस्म मुबारक से कोई चीज नहीं निकली। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। 15वीं हदीस सही मुस्लिम से, मिशकात में है 1693। साद इब्न अबी वक़ास की मौत का वक्त जब करीब आया तो उन्होंने कहा वसीयत करते हुए कि मेरे लिए लहद बनाना, बगली कब्र। ये लहद ये होती है कि कब्र खोदने के बाद जो किबला शरीफ वाली साइड है ना, उसके अंदर एक गार निकाली जाती है बगल सी, उसमें मैयत को यूं शिफ्ट किया जाता है और फिर उसकी वो खिड़की यूं बंद कर दी जाती है दीवार बना के, और फिर बाकी कब्र को भर दिया जाता है। इसको बगली कब्र कहा जाता है। जहां पर मिट्टी गिरे ना वहां पे ये कब्र बनाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
सुन्नत है आपकी भी कब्र मुबारक। तो साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं कि मेरी कब्र भी बगली बनाना और उसकी साइड पे ईंटें लगा देना जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक बनाई गई थी। इसी कॉन्टेक्स्ट में सही मुस्लिम में हदीस है मिशकात में 1694 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक में सुर्ख रंग का कपड़ा बिछाया गया था। यह वो चादर थी जो आप अक्सर इस्तेमाल फरमाते थे बैठने के लिए, तो सहाबा ने उसको ताजीमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही दफन कर दिया कब्र के नीचे। इसमें अल्फाज है फी कब्री रसूलिल्लाह, वो लेते हैं इसमें से, हो हमारे बरेलवी उलमा वो कहते हैं देखे कब्र मुबारक के ऊपर चादर चढ़ाएगी, वो समझते नहीं थी, फिर भी सुरख है। अला कब्री रसूलिल्लाह नहीं है, फी कब्री रसूलिल्लाह। ये प्रेपोजिशंस नहीं आती इनको, फी कहते हैं इन द ग्रेव ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नॉट ऑन द ग्रेव ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फी कब्री रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुर्ख रंग की चादर। इसी कॉन्टेक्स्ट में सही बुखारी में हदीस है मिशकात में 1695 कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक सैयदना सुफियान अत-तम्मार ताबी कहते हैं मैंने खुद कब्र रसूल को देखा है, वो ऊंट की कोहान जितनी ऊंची थी, यानी तकरीबन 10 इंच से लेकर 1 फुट तक, ज्यादा ऊंची नहीं थी। इसी कॉन्टेक्स्ट में सुन नबी दाऊद में एक हदीस है मिशकात में, उसका नंबर है 1712 कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर। मोहम्मद बिन अबी बकर अम्मा आयशा के भाई हैं और इनकी वालिदा जो थी अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिनते उमैस, इनके साथ निकाह सैयदना अली ने किया था अबू बकर सिद्दीक की वफात के बाद। पहले उनकी बीवी थी। मोहम्मद बिन अबी बकर की परवरिश सैयदना अली ने की है, इसलिए जंग जमल और सिफीन में ये सैयदना अली की तरफ से थे और अम्मा आयशा को समझाते भी थे। जब सैयदा आयशा पे कुत्ते भौंके उस वक्त भी जाके अम्मा आयशा को जाके उनके खैमों में समझाया कि मेरी बहन की किस तरफ तुम जा रही हो। हर बाद में सैयदा आयशा पे रोती थी और मैंने जंग जमल पे भी डिटेल लेक्चर दे दिया, मसला नंबर 59A, और जंग जमल सिफीन नहरवान पे मसला नंबर 101 है, ahlesunnatpak.com पे आप देख सकते हैं। तो इनका बेटा था कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर, इनकी फुप्पो लगती थी सैयदा आयशा, वो महरम भी थी। तो कहने लगे फुप्पो जान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र तक मुझे ले जाए, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर और उमर की कब्रें देखनी है। तो कहते हैं मैंने खुद देखी। सो नबी दाऊद में मौजूद है मिशकात में 1712 मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को ना तो जमीन के बिल्कुल साथ मिले हुए देखा और ना बुलंद, हल्की सी वो बुलंद थी और उस पे सुर्ख रंग की कंकरियां बिखरी हुई थी। यानी कब्र आप बना के उसके ऊपर बजरी या इस तरीके से पत्थर साइड पे रख सकते हैं ताकि उसका निशान बाकी रहे और ये बह ना जाए। मसला नंबर 27 मेरा रिकॉर्डेड मौजूद है। मजार बनाने की, पक्का करने की इसकी इजाजत नहीं है, लेकिन कब्र के आसार बाकी हों। सही मुस्लिम में मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा की वफात के 50 साल के बाद अपनी वालदा की कब्र के ऊपर गए थे। ये मैंने हदीस उसके अंदर भी बताई है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के ईमान से मुतालिक भी मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करवा दिया है, मसला नंबर 98 ahlesunnatpak.com पे, जिसे शौक हो तो वो देख सकता है। बाकी डिटेल मसला नंबर 27 है कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुंबद खजरा और मज़ारात के बारे में। सेकंड लास्ट हदीस 16वीं सही बुखारी में है मिशकात में 5961। ये भाई अब दर्दनाक हदीसें आने लगी हैं, रिक्कत अंगेज। अनस इब्न मालिक कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत की तकलीफ छाने लगी तो सैयदा फातिमा ने अर्ज की, अब्बा जान आप कितनी तकलीफ में हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा कोई बात नहीं, आज के बाद तुम्हारे बाप को कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। अब यहां पर मशहूर है कि वो जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजराइल को कहा तू पूरी उम्मत के बराबर तकलीफ मेरे ऊपर ही डाल है, बिल्कुल झूठ है, कोई कहीं मौजूद नहीं है। अच्छा, आज के बाद तुम्हें कोई तकलीफ नहीं आएगी, आज के बाद मुझे कोई तकलीफ नहीं आएगी तुम्हारे बाप को। जब वफात हो गई तो सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, अब्बा जान आपने अपने रब के बुलावे पर लब्बैक कह दिया। अब्बा जान आपका ठिकाना बेशक जन्नतुल फिरदौस है। अब्बा जान हम जिब्रील को आपकी मौत की खबर देते हैं। अल्लाहु अकबर। और फिर अम्मा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, ए अनस तुम्हारे दिलों ने यह कैसे गवारा किया कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में दफनाकर आपके ऊपर मट्टी डाल दे। यानी इतनी तड़प के साथ कि तुमने ये कैसे गवारा किया जिस नबी की खातिर असहाबे रसूल जाने दिया करते थे। लेकिन ज़ाहिर है कि दुनिया से हर शख्स ने जाना है, तो किस दिल के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत मुबारक के ऊपर
یعنی سیلیں رکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی ڈالی گئی. تمہارے دل کیسے آمادہ ہوئے؟ اسی کانٹیکسٹ میں سنن ابی داؤد، سنن دارمی اور سنن ترمذی میں حدیث موجود ہے. مشکات میں ہے 5962. دیکھیں مشکات میں ساری حدیثیں ہیں آلموسٹ، اور میں نے بڑی محنت سے ڈھونڈ کے ان کے نمبر تلاش کیے. انس ابن مالک کا بیان ہے کہ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے سب نے خوشیاں منائیں. اس دن سے زیادہ حسین دن کوئی نہیں تھا اور اس دن سے زیادہ روشن دن کوئی نہیں تھا. لیکن جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دن سے زیادہ قبیح اور تاریک دن کوئی نہیں تھا. جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں داخل ہوئے ہر شے روشن تھی، اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہر چیز تاریک ہو گئی. اور ابھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر مٹی ڈال کر فارغ بھی نہیں ہوئے تھے اور اپنے ہاتھ بھی صاف نہیں کیے تھے کہ ہمارے دل اجنبی ہو چکے تھے. یعنی ایمان بالشہادہ جو دیکھ کے ایمان تھا وہ ایمان بالغیب میں کنورٹ ہو چکا تھا. یعنی اب ان کے لیے بھی غیب کا ایمان تھا. آپ رسول اللہ کو دوبارہ نہیں دیکھ سکتے تھے، کوئی شخص بھی نہیں دیکھ سکتا تھا. تو کہتے ہیں ہمارے دل اجنبی ہو گئے. یعنی نبی کی موجودگی دنیا میں بہت بڑا ایسٹ ہوتی ہے. نبی کے جانے کے بعد ظاہر ہے اس طریقے سے پھر یونٹی نہیں رہتی، اور وہی آپ نے دیکھا کہ 30 سال کے بعد وہ چیزیں بکھر گئی. پھر اللہ اکبر، ہمارے دل اجنبی ہو گئے. باقی ڈیٹیل جسے چاہیے تو عمر سیریز دیکھیں قطر والوں کی 30:1 کے اوپر، عربی میں انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ، اور انشاءاللہ امید ہے اردو میں بھی آ جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 6 سال پہلے سے لے کے سیدنا عمر کی شہادت تک پوری کی پوری بایوگرافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلمائی گئی ہے. آپ کو نہیں دکھایا لیکن سیدنا عمر کو سینٹرڈ کرتے ہوئے وہ ساری چیزیں، جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھیں. آخری حدیث 17ویں صحیح مسلم سے ہے، مشکات میں ہے 5967. انتہائی رقت انگیز. انس ابن مالک کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام سیدنا عمر سے کہنا شروع ہوئے کہ عمر چلو ام ایمن کے پاس چلتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں پھپھو لگتی تھی اور بوڑھیا خاتون تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان بوڑھی اماں کے پاس جایا کرتے تھے، ام ایمن. تو ہم بھی اس سنت پہ عمل کرتے ہیں کہ ام ایمن کے پاس چلے جاتے ہیں. سیدنا ابو بکر نے سیدنا عمر سے کہا. سیدنا عمر وہاں پر گئے. ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کہا کہ اے اما جان ام ایمن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر آپ کے پاس آتے تھے، آج ہم بھی اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو ملنے کے لیے آئے ہیں. یعنی آپ اپنے آپ کو اکیلا تصور نہ کریں. تو سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا وعلیہ السلام رو پڑی. تو سیدنا ابوبکر عمر نے کہا کہ اماں کیوں روتی ہو؟ رسول اللہ تو جنت الفردوس میں پہنچ چکے ہیں، اس دنیا سے بڑھ کر بہتر جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرما دی ہے. تو ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیں کہ واللہ مجھے معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس میں ہے. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ نہیں رو رہی، 3 دن سے زیادہ ظاہر غم نہیں ہو سکتا، یہ تو حضرت ابوبکر کے دور کی بات ہے. واللہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اب قیامت تک آسمان سے اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ کلام نہیں کرے گا. وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. یہ جو اسپیکٹ ہے میرے بھائیوں کہ اب قیامت تک اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو یہ نہیں بتانا کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اب اللہ تعالیٰ نے اپنا اس طرح کا رشتہ اس دنیا سے الگ کر لیا ہے. اب کسی انسان کے ساتھ وہ خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کوئی صحابی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کلام نہیں کرے گا. تو ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کی کہ اب اللہ تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرے گا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر رو پڑے کہ واقعی اب اللہ تعالیٰ قیامت تک کسی انسان سے کلام نہیں کرے گا، یہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. بہرحال ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قیامت تک کے لیے محفوظ ہے. یہ آخری کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصی ہے، یہ قیامت تک کے لیے امت کو دے کر گئے، سنت چھوڑ کر گئے، اہل بیت کا احترام، ان کی محبت چھوڑ کر گئے. اصحاب کی تعلیمات الحمدللہ محفوظ حالت میں قرآن و سنت میں موجود ہیں.